Assalamu alaikum everyone. Let's start with the paper. आज हम डिस्कस करेंगे मई जून 2020 वेरिएंस 12 in which carbon allotropes all electrons are localized. Localized means fixed. मतलब they cannot freely move inside the lattice. So graphene, graphite and Buckminster fullerene have delocalized electrons, which means they can freely move into the lattice or between the lattice. But diamond is going to be the right answer because diamond के जो electrons होते हैं या diamond में जो electrons होते हैं वो सारे के सारे covalent bond की formation में involve हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई free mobile electron नहीं रहता, सारे के सारे localized electrons होते हैं. Okay. Now the next is a copper ore contain 3% of copper carbonate by mass. Okay. फिर वो कह रहे हैं which mass of copper would be obtained if 1 tons of the ore from 1 tons of the ore. तो पहली तो बात ये कि 1 ton is always equals to 1000 किलोग्राम, ये बात ध्यान में रखो. अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम स्टेप्स में कर लेते हैं इसको. इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव ore and we have copper carbonate. Let's suppose ore 100% है और उसमें कॉपर कार्बोनेट 3% है, राइट? अच्छा, और हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 टन एंड दैट्स इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम. तो अगर मेरे पास भाई 1000 किलोग्राम है तो बताइए कॉपर कार्बोनेट कितना होगा. तो कॉपर कार्बोनेट मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से बाय मास 3000 डिवाइडेड बाय 100. तो ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 3000 डिवाइडेड बाय 100 इज गोइंग टू बी हाउ मच 30 किलोग्राम. ठीक है. Now in the second step we need to compare the mass of copper carbonate and copper because copper कितना है copper carbonate में मुझे ये determine करना है according to this question, right? So copper carbonate has an MR of what? 123.5 and copper is 63.5. अगर आपने कॉपर कार्बोनेट ओर में 30 किलोग्राम डिटरमिन किया था तो बताइए ये कितना होगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 15.42. आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता हो. 15.42 is the right answer, so C is going to be the right answer. सही है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है the catalyzed formation of ammonia by the Haber's process can be represented by the equation. This equation says कि भाई reaction exothermic है. Which change in conditions will increase both rate of formation and the equilibrium yield. भाई equilibrium yield of ammonia अगर आपने increase करनी है तो इसका मतलब reaction needs to be go in the forward direction, and for that we need to increase the pressure, क्योंकि जब pressure increase करेंगे equilibrium forward direction हो जाएगा और pressure increase करने से number of effective collisions in a unit time increase होते हैं जिसकी वजह से ये rate of reaction भी increase करेगा. Therefore C is going to be the right answer. ठीक है. डिक्रीज इन टेम्परेचर करने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, यील्ड ऑफ अमोनिया कम हो जाएगी. इंक्रीज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर करने से फॉरवर्ड जाएगा, यील्ड इंक्रीज हो जाएगी. रेट ऑफ रिएक्शन जब स्लो हो जाएगा, व्हिच इज व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एंड देयरफॉर ये गलत हो जाएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बट यील्ड ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस because equilibrium favors towards left hand side. Increase in the surface of the catalyst. The surface area of catalyst has nothing to do with the yield. उसके बाद question number 4. Solid sulfur consists of acid molecules. Which equation represents the standard enthalpy change of atomization?
हमने पहले भी बताया, आज फिर बता देते हैं कि एटोमाइजेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 mole of gaseous atom is formed from its element under standard condition. Let's talk about यहाँ 1 mole of gaseous atom बना under standard condition, which यहाँ पर 1 mole of gaseous atom बना but solid gas में नहीं होता, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ 8 moles of oxygen बन गए, इसका मतलब ये भी गलत। यहाँ पर भी 8 moles of gaseous sulfur atom बन गए, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी A. Okay, in this question you should use changes in oxidation number to balance the chemical equation. Okay, the following reaction occurs when MnO2 is warm with dilute H2SO4. ठीक है, MnO2 is warm with dilute H2SO4. What is the ratio of C and D in the correctly balanced equation? Okay. Okay. See guys, what we can do is, मुझे ये पता है कि MnO2 is converting into Mn2 plus, MnO2 is also converting into MnO4 plus, MnO negative। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशंस को सेपरेटली हैंडल करता हूँ, आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स अप्लाई। ठीक है, MnO2 is converting into Mn2 plus, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो मैं 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल अप्लाई करूंगा। यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, मैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयंस अप्लाई करूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पर चार्ज 2 प्लस है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लूंगा। ठीक है, सिमिलरली मैं MnO2 कन्वर्ट कर रहा हूँ MnO4 नेगेटिव में, राइट। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आइंस। एंड ऑब्वियसली बेटा यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, 4 प्लस एंड -1 3 प्लस, और यहाँ चार्ज कितना है 0। सो टू बैलेंस द चार्ज वी नीड टू पुट 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, सॉरी 3 से, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल होंगे। आप नोट करें हाइड्रोजन आइंस भी आपस में कैंसिल होंगे, आप नोट करें वाटर मॉलिक्यूल भी कैंसिल होंगे, राइट। तो मैं फाइनल इक्वेशन ये लिख सकता हूं, तो जगह 5 MnO2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस प्लस तो नहीं है, फिर ये हो जाएगा 3 Mn2 प्लस 2 Mn2 प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस +2H2। अब आप नोट करें, आपको एक्चुअली C और D का रेशियो चेक करना है, यानी आपने इन दोनों का रेशियो चेक करना है। तो आपके पास इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 3:2। तो राइट आंसर क्या होगा, C। ठीक है, तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन दिस क्वेश्चन यू शुड एज्यूम एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड to ensure complete combustion of 10 cm³ of butane under room condition. Okay, so we need a lot of space for this question. Let's start with this. मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ ब्यूटेन कैलकुलेट करूंगा, बिकॉज मुझे वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन गिवन है, C4H10 होता है ब्यूटेन।
तो मैं 10 को डिवाइड कर देता हूँ 24,000 cm³ से, तो मेरे पास मोल्स ऑफ ब्यूटेन आ जाएंगे बेटा। तो मोल्स ऑफ ब्यूटेन जब आएंगे मेरे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास ओके मोल्स निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमसे वो एयर का वॉल्यूम मालूम करवा रहा है, नॉट ऑक्सीजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली हम इक्वेशन सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। C4H10 प्लस O2 एरो 4CO2 प्लस 5H2। ठीक है, यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 13। तो 13 ऑक्सीजन करने के लिए मैं यहाँ पर 6.5 अटैच कर देता हूँ। अब ये 1 मोल है, ये 6.5 मोल है। अगर ये 10 cm³ था आपके पास, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये 65 cm³ हो जाएगा। सही, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपको पता है एयर में ऑक्सीजन होती है, तो अगर हमें 100 cm³ ऑफ एयर ले रहा हूँ, तो उसमें से 21 cm³ एयर होगी, बिकॉज 21% ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है एयर के अंदर। आपने अगर 65 cm³ एयर कैलकुलेट किए, तो बताइए, तो सॉरी 65 cm³ ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट किए, तो बताइए एयर कितनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा 65 into 100 divided by 21, so it's going to be 309.5 centimeter cube. So D is going to be the right answer. Okay, फिर वो कह रहे हैं when aqueous bromine is shaken with cyclohexane, bromine cyclohexane के साथ शेक कर रहे हैं, 2 layers form। 2 layers इसलिए क्योंकि मीडियम एक्वस भी है। आगे चलते हैं। द टॉप साइक्लोहेक्सेन लेयर इज कलर्ड, क्योंकि ब्रोमीन खुद कलरफुल होता है, एंड द बॉटम एक्वस लेयर इज ऑलमोस्ट कलरलेस। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन? ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड टू ब्रोमाइड आयंस। गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर, बिकॉज रिडक्शन नहीं हो रही है, डिसॉल्व हो रहा है। सही है, शेक कर रहे हैं आप ब्रोमीन को, ब्रोमीन डिसॉल्व हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा। तो अब यहां लिख दीजिए ब्रोमीन कैन नॉट रिएक्ट विद साइक्लोहेक्सेन। फिर वो कह रहे हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। that might be the right answer, because bromine non-polar is, cyclohexane is also non-polar, and according to like dissolves like principle, both of them are soluble. So non-polar substances are soluble in each other. Non-polar substances फिर वो कह रहे हैं ब्रोमीन रिएक्ट्स विद वाटर एंड कैन नॉट रिएक्ट विद साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से भी रिएक्शन नहीं करता, वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता, ये भी गलत। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमीन एंड साइक्लोहेक्सेन इज कलर्ड। भाई रिएक्शन ही नहीं हो रहा ना, रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी गलत। इन विच चेंज आर ओनली टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस ओवरकम। आप नोट करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, गैस में जाने से ओवरकम होगी। आप नोट करें, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं इसमें, लिक्विड बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ओवरकम तो नहीं हो गई, और स्ट्रॉन्ग हो गई। वैन डर वाल्स फोर्सेस से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी सॉलिड स्टेट में, और मैंने पढ़ाया आपको, रजिस्टर में लिखा है कि सॉलिड सब्सटेंसेस की वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जब वो लिक्विड में जाएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगी, यानी ओवरकम होंगी।
which is why C is the right answer. Question 9 repeat हुआ है, पहले भी करवा चुका हूँ. The complete combustion of 2 moles of an alkane produces 400 dm cube of carbon dioxide measured at 301 Kelvin at this pressure. तो आपके पास एक्चुअली वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी अज्यूम्ड टू बिहेव्स एज एन आइडियल गैस. अगर कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेव कर रही है तो PV इक्वल्स टू nRT अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द अल्केन? तो मैंने आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले सॉल्व किया मैंने पेपर. मैंने आपको कहा था कि PV इक्वल्स टू nRT होता है. यहाँ से आप मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए. तो R की वैल्यू हो जाएगी 8.31. टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास 301 केल्विन. प्रेशर जो है वो आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 10⁵. और यहाँ से आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा 400 dm क्यूब. उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ से. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 16 फॉर 2 मोल्स ऑफ एल्केन. तो भाई अगर 2 मोल्स ऑफ एल्केन में 16 कार्बन एटम्स हैं हाइड्रोकार्बन में, तो बताइए 1 मोल में, अगर 1 मोल ऑफ एल्केन है तो उसमें कितने कार्बन एटम्स हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे. तो 8 कार्बन एटम्स कहाँ लिखा हुआ है आपने? ए में. तो ए वुड बी द राइट आंसर. Question number 9. In which reaction does an element undergoes the largest change in oxidation number? Largest change in oxidation number. तो बेटा ये 0, ये +1, ये -1, तो लार्जेस्ट तो नहीं हुआ. ये 0, ये +5, ये प्लस और ये -1, तो लार्जेस्ट अभी भी नहीं हुआ. 0 से +5 जा रहा है, इसका मतलब +5 का चेंज है यहाँ. अच्छा, ये +6 है और ये +3 है, तो चेंज +3 को -3 का हो जाएगा. ये +2 है और ये +3 है, तो चेंज +1 का हो जाएगा. यहाँ पर +6 है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +7 है, यहाँ +4 है. तो ग्रेटेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली आपको कहाँ मिल रहा है बेटा? एज यू कैन सी, इसमें मिल रहा है. +5 का चेंज है, तो बी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम क्या करेंगे? वर्किंग करनी है हमें. तो हम क्वेश्चन इसका कॉपी कर लेते हैं और हम इसको एक पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जगह कम है. ठीक है जी. ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो इसका सॉल्यूशन कुछ ये होगा कि आप इक्वेशन को दोबारा से बनाएंगे. ये एक्चुअली PCl3 और क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है. इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है. वो कह रहे हैं जनाब 1 मोल ऑफ PCl3 PCl5, 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन. तो इनिशियली सबके मोल्स गिवन है 1 1 1. इक्विलिब्रियम के मोल्स PCl3 के गिवन है विच इज 1.8. सही है. तो मोल्स फॉर्म निकाल लेता हूं मैं यहाँ. मोल्स फॉर्म कितने होंगे? इनिशियली मेरे पास 1 थे, यहाँ पर फॉर्म कितने हो गए? 1.8. तो 1.8 में से अगर मैं 1 निकालूं तो इसका मतलब 0.8 मोल्स जो हैं वो रिएक्ट हो रहे हैं एक्चुअली.
सही है, 0.8 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं। तो अगर 0.8 मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो 1:1 के रेशियो की वजह से 0.8 मोल्स यहाँ भी फॉर्म होंगे, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 1.8, क्योंकि ऑलरेडी 1 था। ठीक है, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर 1.8 एट इक्विलिब्रियम PCl3 है तो एट इक्विलिब्रियम क्लोरीन भी 1.8 ही होगा, बिकॉज 1:1 का रेशियो है। ये एक तरीका हो गया देखने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर इसमें 0.8 की एडिशन से ये 1.8 बना, तो यहाँ पर भी 0.8 की एडिशन से ये 1.8 बनेगा। Now the next is moles of PCl5 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इनिशियली 1 थे, रिएक्ट उसमें से 0.8 हुए, तो बच कितने जाएंगे 0.2 मोल्स। अब यहाँ पर 0.2 मोल्स लिख लीजिए। Kc कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, तो ये हो जाएगा 1.8 का स्क्वायर ओवर 0.2। तो यहाँ से Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16.2। तो 16.2 इज बेसिकली द डी आंसर। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं द 5th to 8th ionization energy of 4 elements in period 3 of the periodic table are shown, which row refers to chlorine। तो अगर क्लोरीन है तो इसका मतलब 7th और 8th इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप कहां पर आ रहा है 7th और 8th के दरमियान, ये चेक कर लीजिए आप। तो 30.3500 माइनस 25,900, तो ये हो जाएगा आपके पास 4600। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया कि बहुत ही कम डिफरेंस है। फिर 31,700 माइनस 27,100, तो ये 4600 का आ रहा है, तो ये भी गलत क्योंकि यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा। फिर 33,600 माइनस 11,000, तो ये हो जाएगा 22,600। सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप जो है वो ज्यादा बिटवीन 7 and 8 आ रहा है इन ऑप्शन सी, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि जो पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस शेल से रिमूव हुए हैं। तो आप लिखिए फर्स्ट seven electrons are removed from valence shell। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आपसे कह रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड to give a white solid and a mixture of gases. One of the gases releases in its oxides of nitrogen X। तो बेटा ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास जो गैस है वो एक्चुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज X, राइट। वो कह रहे हैं आपसे 7.4 gram of anhydrous magnesium nitrate is heated until no further reaction takes place. What mass of X is produced? Okay. तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट निकालता हूँ। मुझे मास गिवन है 7.4, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इसके एमआर से। एमआर निकालने के लिए मैं मैग्नीशियम को यूज करूंगा विच इज 24.3 प्लस नाइट्रोजन यूज करूंगा यार, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, जस्ट होल्ड अ सेकंड प्लीज, निकालता हूँ। तो 148.3 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा आपके पास, अल्लाह करे, wait, 7.4 divided by 148.3, so it's going to be 0.049 मोल्स। ठीक है, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो उसमें
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में मोलर रेशियो होता है 2:4 का। इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा 0.049। तो बताइए ये कितना होगा, तो मोल्स ऑफ NO2 कितने हो जाएंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0997 मोल्स। वो मुझसे मास ऑफ एक्स पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब NO2 के MR से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मास ऑफ NO2 निकालना है, तो मैं 46 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.0997 से, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 46 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.59। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है बेटे, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हम देखेंगे which statement explain why iodine is less volatile than chlorine। आप जानते हैं आयोडीन मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, और अगर स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी तो जाहिर सी बात है लेस वोलेटिलिटी होगी। ठीक है, क्लोरीन में क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, और जाहिर सी बात है हाई वोलेटिलिटी होगी। ठीक, तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन आयोडीन, सो हैज मोर रिपल्जन। नो, गलत बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वोलेटिलिटी से ताल्लुक नहीं होता, वोलेटिलिटी का ताल्लुक होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस से। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयोडीन लीड्स टू लार्जर टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस। एग्जैक्टली मैंने यही लिखा है। तो जब फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो जाहिर सी बात है वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो वो यही कह रहा है कि लेस वोलेटाइल क्यों है। तो राइट आंसर इज बी। फिर वो कह रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन जेंटल वार्मिंग अ रिएक्शन अकर्स। ठीक है, फॉर्मिंग अमोनिया एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। हाउ आर द कार्बोनेट आयंस बिहेविंग ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो बेटा कार्बोनेट आयन जो है वो एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस यूज हो रहा होगा। सो राइट आंसर इज बी। अमोनियम कार्बोनेट को हीट करो तो ये कन्वर्ट, ओ माय बैड, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करो तो ये कन्वर्ट होगा अमोनिया में और हाइड्रोजन कार्बोनेट में। तो क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, which is why B is the right answer। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा जब भी तो बेटा ये एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्साइड of element Z reacts with 6 molecules of water to produce an acidic compound. What is element Z? Element Z क्या है? Oxide of element Z reacts with 6 molecules of water to produce an acidic compound। ठीक है जी, जरा देखिए, अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फास्फोरस का ऑक्साइड Sp4O10 सॉल्युबल इन वाटर होता है और एसिडिक सॉल्यूशन देता है। प्रॉब्लम है इसके 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते भी हैं या नहीं, तो हम इक्वेशन बना के देख लेते हैं। P4O10 प्लस 10H2O, ओ सॉरी वाटर, तो ये बनेगा H3PO4। अब जाहिर सी बात है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4, आई मीन फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए 4, तो यहाँ पर 6 आएंगे, तो ये बैलेंस हो रही। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। विच प्रॉपर्टी शोज एन इंक्रीज फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम। आप जानते हैं
मैग्नीशियम टू बेरियम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो ये गलत हो गया। ओ हाँ, तो गलत हो गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेटल, भाई मेटल सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर solubility of hydroxides increases, that's right, क्योंकि वो increases ही पूछ रहा है, तो C is going to be the right answer। आगे चलें, solubility of group 2 sulfates decreases, जबकि वो कह रहा है increases, तो ये भी गलत हो गया। Next is a test tube of HBr and a separate test tube of HI are heated to the same temperature, यानी एक जार में HBr है, एक जार में HI है, और आप उसको हीट कर रहे हो at the same temperature। Observation is possible, कौन सा combination of observation is possible? तो आप जानते हैं HBr जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थर्मली स्टेबल होगा, तो ये आ गया। ठीक है, जब HI डिकम्पोज होगा तो पर्पल वेपर्स मिलेंगे, तो पर्पल वेपर्स जो है वो यहाँ पर हैं, व्हिच मींस D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर आपके पास है मोस्ट मॉडर्न कार्स आर फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द एग्जॉस्ट सिस्टम, व्हिच 3 गैसेस आर रिमूव्ड बाय कैटालिटिक कन्वर्टर। भाई कौन कौन सी गैसेस कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव करता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिमूव करता है, दैट्स राइट। हाइड्रोकार्बन्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, दैट्स आल्सो राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, एंड सो ये ओवरऑल फॉर्मेट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कैटालिटिक कन्वर्टर में सल्फर डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होती है, तो ये भी गलत। सल्फर डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होती है, ये भी गलत। उसके बाद वो कह रहे हैं कंपाउंड एक्स इज शोन, इस कंपाउंड एक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कीन है और सेकेंडरी अल्कोहल है। वो कह रहे हैं एक्स इज ट्रीटेड सेपरेटली विद NaOH एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव Y and Z। तो अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा ऑब्वियसली सॉल्ट बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर, तो ये बन जाएगा COONA, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए ये कहां पर लिखा है, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी में भी लिखा है, ऑप्शन सी में भी लिखा है और ऑप्शन डी में भी लिखा। अच्छा, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते। ठीक, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो रिडक्शन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH2OH में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये एज इट इज रहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब ये देखें ये कहां पर लिखा है, ये ए में लिखा है, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, आप जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहे हैं द टेबल shows the molecular formula of 3 molecules P, Q and R, none of the molecules are cyclic। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। वो कह रहे हैं which molecules show a strong absorption between these ranges in their infrared spectra। ओके, एक कार्बन एटम का अल्कोहल होगा विच इज मिथेनॉल, Q जो ये आपका P हो गया, Q जो है वो आपका एक कार्बन एटम है, तो इसका मतलब ये एक कार्बन का एसिड हो जाएगा। सही है, और R जो है वो एक कार्बन का एल्डिहाइड हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। इस एक कार्बन के एल्डिहाइड को कहा जाता है मिथेनॉल। सही है, ये है आपके पास मिथेनॉल और ये है आपके पास मिथेनोइक एसिड। Now the point is कि इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये जो रेंज है ये कार्बोनाइल की रेंज है, और वो कार्बोनाइल की रेंज Q और R के अंदर अवेलेबल है, इसलिए Q and R इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 22,
Which row correctly shows the type of mechanism of each of the two reaction? बेटा alkyl halide always undergoes nucleophilic substitution reaction. तो या तो ये ठीक है या फिर ये ठीक है. And ketone always undergoes nucleophilic addition. तो nucleophilic addition ये ठीक है. तो right answer is D. फिर वो आपसे कह रहे हैं ester X is shown. ठीक है. ester X is hydrolyzed using aqueous sodium hydroxide. तो salt बनेगा alcohol के साथ. वो कह रहे हैं what is the molecular formula of one of the product. तो बेटा अगर मैं इसको ओपन करके लिख लूं यहां और फिर इससे प्रोडक्ट बनाऊं, आप जानते हैं ये एस्टर का बॉन्ड ब्रेक होगा, इथेनोइक एसिड मिलेगा मुझे और अल्कोहल मिलेगा मुझे. तो CH3 CH2 टेकन 7 OH. आप जानते हैं ये मीडियम अल्कलाइन है, तो ये अल्कलाइन मीडियम होने की वजह से सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखें इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको गिवन होगी. कौन सी गिवन है? अच्छा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है. चलें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. ये 2 कार्बन्स हैं, 3 हाइड्रोजन्स हैं, 2 ऑक्सीजन है, 1 सोडियम है. क्या ये कहीं लिखा हुआ है? C2H3O2N है. यस, बी लिखा है. बी इज द राइट आंसर. सही है. Which reagent could be used to distinguish between propane 1,2-diol and ethane 1,2-diol? भाई propane 1,2-diol का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले. ये हो जाएगा CH3 CHOH और ये हो जाएगा CH2OH. और इथेन 1,2-diol का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये हो जाएगा CH3 इथेन 1,2-diol है CH2OH एंड देन CH2OH. देखें आप जानते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है. आप जानते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है. तो भाई मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 तो यूज नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये सारे के सारे ऑरेंज टू ग्रीन की ऑब्जर्वेशन जो कर देंगे ऑक्सीडेशन की वजह से. तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. ये सारे के सारे क्या हैं? अल्कोहल्स. ये भी सारे के सारे क्या हैं? अल्कोहल्स. एंड ऑल अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस. तो अगर मैं सोडियम मेटल से रिएक्शन करूंगा तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकूंगा, तो ये भी गलत हो जाएगा. ठीक है जी. ऑल ऑफ देम आर अल्कोहल्स. अल्कोहल्स अल्कोहल से रिएक्शन कभी भी नहीं करते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए. कैसे पता चला? इस तरह से पता चला कि ये जो आपके पास CH3 CHOH है ये एक साथ लिखा हुआ है, ये आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव दे देगा. केस पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आइडोफॉर्म. इथेन 1,2-diol नहीं देगा. ठीक है, ये दे देगा. इस तरह से ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा. 25. Which substance forms propanoic acid as one of the product when it reacts with hot concentrated acidified potassium magnate 7? बेटा ब्यूटवानीन लिख देता हूं मैं आपके सामने. ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो अगर आप इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो जो डबल बॉन्ड के साथ CH है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. ये प्रोपेनोइक एसिड, वो आपसे प्रोपेनोइक एसिड पूछ रहे हैं, तो A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बच्चे पूछते हैं सर व्हाई नॉट B? तो भाई B को भी देख लीजिए. ये है CH3, ये है CH, ये है डबल बॉन्ड, ये है CH और ये है CH3. अगर मैं इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि मुझसे प्रोपेनोइक एसिड मांग रहा है, इथेनोइक एसिड नहीं मांग रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर क्योंकि वहां पर प्रोपेनोइक एसिड आ गया, बाकी कहीं प्रोपेनोइक एसिड नहीं आएगा. आप चाहें तो बना के देख सकते हैं. 2 मिथाइल प्रोपीन है, ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन. डबल बॉन्ड के साथ CH नहीं है, इसका मतलब इट विल टर्न टू कीटोन. कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, इसलिए ये भी गलत. फिर है आपके पास CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2. आप नोट करें डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, इसका मतलब ये भी कीटोन देगा.
कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आ रहा, ये भी गलत। फिर वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ damascenone is shown. Damascenone, including damascenone, how many stereoisomers exist with this structural formula? यार how many stereoisomers exist with this structural formula? भैया अगर स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो मुझे दो देखने पड़ेंगे, एक ऑप्टिकल नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई कायरल कार्बन एटम है ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लिक रिंग्स में नहीं होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना। सिस ट्रांस साइक्लिक रिंग्स में नहीं होगा, यहाँ होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कर लूं 2 to the power 1, तो ये हो जाएगा 2 आइसोमर्स। तो राइट आंसर इज बी। हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस? तो बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आई विल ट्राई। देखें, सबसे पहले ये है CH3 CO O CH2 CH3, फिर दूसरा बनेगा CH3 CH2 CO O CH3। ये भी तो बन सकता है H CO O CH2 CH2 CH3। मैं इसका एक चेन आइसोमर बना देता हूं, तो ये बनेगा HCO O CH, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, तो टोटल 4 बने। Oops. तो राइट आंसर इज सी। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं इथीन रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन टू गिव 2 प्रोडक्ट्स दिस एंड दिस, राइट। इसमें दोनों तरफ ब्रोमीन है तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया, इसमें एक ब्रोमीन और एक OH है, तो इसका मतलब ये अल्काइल हैलाइड भी है, अल्कोहल भी है। वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट दीस प्रोडक्ट्स इज करेक्ट? वो कह रहे हैं बोथ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई एल्कीन है, एल्कीन ऑलवेज अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ये गलत हो जाएगा। Alkenes always undergoes electrophilic एडिशन, तो ये गलत हो गया। फिर आपके पास है बोथ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये भी गलत, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस इन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन एल्कीन्स, एल्डिहाइड कीटोन में होते हैं ये, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं बोथ प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। यार ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा क्योंकि OH है, लेकिन ये नहीं बना सकेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो जब A गलत, B गलत, C गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। और डी क्यों ठीक है? क्योंकि बोथ प्रोडक्ट्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा देखते हैं सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। तो इक्वेशन देखिए, ये हो जाएगा CH2Br और ये हो जाएगा CH2Br। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा, Br की जगह पे OH आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है बेटा आपके पास CH2Br CH2OH। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूंगा तो Br की जगह OH आ जाएगा। तो आप नोट करें, ये दोनों प्रोडक्ट सेम हो गई, तो सेम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, PVC is used as a packaging material। वो कह रहे हैं व्हाट होल्ड्स
the different polymer strands together in a piece of solid PVC. Solid PVC कह रहा है. PVC का स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपके लिए. ये PVC का हमने एक पॉलीमर बनाया, राइट. इसी तरह का एक और भी पॉलीमर होगा PVC का. ठीक है, इसी तरह का एक और पॉलीमर तो मिलियन ट्रिलियंस के करीब होते हैं, राइट. तो ये लेयर 1 है, बल्कि स्ट्रैंड की वर्ड यूज की उसने, तो आप कह दीजिए ये स्ट्रैंड 1 है और ये स्ट्रैंड 2 है. अब नोट करें इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान वैन डर वाल्स फोर्सेस है. Strands are held together by वैन डर वाल्स फोर्सेस. वैन डर वाल्स फोर्सेस वैसे तो वीक होती हैं, लेकिन क्योंकि पॉलीमेरिक चेन बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे उसमें मोनोमर्स होते हैं, तो क्या होता है कि जब स्ट्रैंड्स के दरमियान यानी चेन्स के दरमियान जब वैन डर वाल्स फोर्सेस बनना शुरू होती हैं, ओरिजिनेट होना शुरू होती हैं, तो फिर वो पॉलीमेरिक चेन के होने की वजह से, बड़ी चेन होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड हो जाता है. Make it stronger between the strands, hence it becomes solid. Right answer is D. 30 पहले भी करवाया मैंने. The diagram shows the structure of buta-1,3-diene. वो कह रहे हैं the addition reaction between buta-1,3-diene and two molecules of HBr can produce 3 structurally isomeric products. How many of these products have at least one chiral center? ये मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पेपर सॉल्व करके दिया है, and I hope कि आपको ये आता हो. पहली तो पॉसिबिलिटी ये है ये हमने लिखा, हम एक और मर्तबा लिख लेते हैं इसको ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े. एक और मर्तबा लिख लेते हैं इसको. ठीक है जी, ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी 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 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हाइड्रोजन हो गया. ठीक है, तो हमारे पास देखिए H2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr से रिएक्शन हो रहा है. हाँ, और क्योंकि ये एल्कीन है तो हम क्या करेंगे, एक Br यहाँ अटैच कर देंगे, एक H यहाँ अटैच कर देंगे. सिमिलरली एक H यहाँ पर अटैच कर देंगे, एक Br यहाँ पर अटैच कर देंगे. ठीक, और यहाँ से पाई बॉन्ड रिमूव कर देंगे. दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम यहाँ पर ब्रोमीन अटैच कर दें और यहाँ पर अटैच, हम यहाँ पर ब्रोमीन अटैच कर दें और यहाँ पर H, और जो पाई बॉन्ड है वो रिमूव कर दें. ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ ब्रोमीन अटैच करूं, यहाँ H, और मैं यहाँ पर H अटैच करूं और यहाँ ब्रोमीन, और मैं अब पाई बॉन्ड रिमूव कर देता हूं. तो वो कह रहे हैं
एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। आप नोट करें इसमें तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इट डजंट हैव एनी कायरल सेंटर, इसमें कोई कायरल नहीं है, राइट। लेकिन आप नोट करें दिस कार्बन इज कायरल, राइट, तो ये ठीक हो गया। टोटल कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कायरल आ रही है? 2, तो राइट आंसर इज सी। 31। ओके 31 देखें। Scientists are trying to synthesize a new element with proton number 119. The element is predicted to be in group 1 element and in period 8 of the periodic table. Okay. Which predictions are likely to be correct about this reaction? वो कह रहे हैं outermost occupied orbital of one atom of this element will be in s orbital. That's absolutely right. क्योंकि अगर ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो हम सब पढ़कर आ रहे हैं कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं वो उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन s ऑर्बिटल। तो ग्रुप 1 एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, the atomic radius will be the largest of the 7 elements in group 1. That's also right, इसलिए क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। इट विल हैव अ ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन एलिमेंट 118। बेटा अगर ये 119 वाला ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो 118 वाला यकीनन इससे पहले वाला एलिमेंट होगा, और अगर इससे पहले वाला एलिमेंट है तो वो ऑब्वियसली ग्रुप 8 का एलिमेंट होगा, और ग्रुप 8 के जो एलिमेंट हैं वो ऑब्वियसली स्टेबल होते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, राइट। तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि वो कह रहे हैं इट विल हैव अ ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आई बिलीव। ठीक है, तो आप कह दीजिए, यहां पर लिख दीजिए एलिमेंट 118 is found in group 8, और ग्रुप 18 कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू periodic table, hence it has higher ionization energy than 119 then element with proton number 990। ठीक है, वो कह रहे हैं which reactions would have the reaction profile shown। बेटा ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट, और बेटा ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये स्टेप गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सो। ठीक है, ये ठीक है क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज एंडो।
ये भी ठीक हो जाएगा इसलिए क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो। राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओ सॉरी, 32 का आंसर बी, सी होगा। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ठीक है ना। उसके बाद 33, which factor can lead to an increase in the rate of reaction? इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉप करके इंक्रीज किया जा सकता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करके इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके इंक्रीज किया जा सकता है। दैट्स एन इजी क्वेश्चन, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सोडियम एंड फ्लोरीन आर बोथ रिएक्टिव एलिमेंट्स, टू एटम्स आर डिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये फ्लोरीन है, ये नियॉन है, ये इनके न्यूक्लियॉन नंबर है। Which statement about these two atoms and the ions they can form are correct? One sodium atom has two more protons than one fluoride ion. नहीं यार, हाँ बात तो सही है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो इसका मतलब इसमें 9 प्रोटॉन्स होंगे, तो सोडियम में 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो 34 का फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। One sodium atom has two more neutrons. 19 माइनस 9 करेंगे तो 10 न्यूट्रॉन्स होंगे, 23 माइनस 11 करेंगे तो 12 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। ठीक है, वन सोडियम आयन हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज फ्लोराइड आयन, बिल्कुल ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, व्हिच मींस दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 35, in the atmosphere which transformations can involve sulfur dioxide as either a reagent or a catalyst? तो आप जानते हैं, आपने हमसे पढ़ा है कि अगर NO2 है वो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, खुद NO बन जाता है, फिर NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बना लेता है, तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया क्योंकि कैटलिस्ट है यहाँ पर NO2। तो और अगर मैं इस इक्वेशन को फ्लिप कर दूं तो जाहिर सी बात है फिर NO क्या हो जाएगा एज अ कैटलिस्ट, वो भी ठीक होगा, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। NO से NO2, नहीं ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी, NO2 से NO हो जाएगा। Okay, 36, the bond dash of the HBr molecule is dash than that of HI molecule, which pair of words correctly complete the above statement? The bond energy of HBr is greater than HI, ये बात बिल्कुल ठीक है, HBr की बॉन्ड एनर्जी HI से ज्यादा होती है क्योंकि HBr का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू HI। सेकंड, द बॉन्ड लेंथ ऑफ HBr इज लोअर देन दैट ऑफ HI मॉलिक्यूल, दैट्स परफेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन HBr की पोलैरिटी is greater than that of HI molecule, ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि bromine is more electronegative element than iodine, the right answer is A. Compound X has the following structure, which statement about compound X are correct? X will decolorize cold acidified KMnO4, not correct क्योंकि ये टर्शियल अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये कीटोन है, ये भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। neither tertiary alcohol nor ketone oxidizes। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, X gives a orange precipitate with 2,4-D in pH, that's right, बिल्कुल सही बात है, ketone gives this test, ketone give
this test X do not react with reagent tolerance reagent. बिल्कुल सही बात है ये भी. Ketone cannot react with tolerance reagent. So right answer is C. Propanol reacts with hydrogen cyanide. Okay. What absorption are present in the interest? अच्छा, प्रोपेनॉल जो है वो आपका एक एल्डिहाइड है और जो वो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो बेटा वो साइनोहाइड्रिन बनाएगा. और साइनोहाइड्रिन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CHOHNCN. तो यार एक तो नाइट्राइल हो जाएगा आपके पास और नाइट्राइल होता है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स आई बिलीव. एक आपके पास OH हो जाएगा. OH जो मैंने आपको बताया वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स. ये CH है तो CH आपके पास होता है भाई 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. तो अब जरा देखते हैं कि हम सही कह रहे हैं गलत. बाय द वे ये मैंने आपको फिक्स वैल्यूज दिए हैं, आपकी डेटा बुकलेट में रेंजेस हैं तो आप उनको देख के काम कीजिएगा. ठीक है. वो कह रहा है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है. ठीक है. 2250 के ऊपर अब एब्जॉर्प्शन पीक आएगी तो पहला स्टेटमेंट ठीक है. 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर ये वाली वीक एब्जॉर्प्शन होगी. और जाहिर सी बात है आप नोट करो ये CO बॉन्ड भी तो है. इस CO बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन पीक 1200 सेंटीमीटर इनवर्स होगी. राइट. तो ये थर्ड भी ठीक है. तो राइट आंसर इज ए. 39. Which alcohols cannot be dehydrated from alkene? बेटा जब डिहाइड्रेशन होती है तो एल्कीन बनता है ना. वो कह रहा है कैन नॉट. तो आप जहन में रखिए कि ये गलत हो जाएगा. कांट गिव एल्कीन. एक कार्बन एटम का तो एल्कीन होता भी नहीं है ना. तो ये गलत हो गया. ये ठीक होगा ये भी एल्कीन देगा. ये भी ठीक होगा ये भी एल्कीन देगा. ये आपको देगा 2-मिथाइल प्रोपीन. ये मैंने क्लास में आपके साथ शेयर किया है एग्जाम्पल्स. और ये आपको देगा बेटा आइदर ब्यूटवनीन. ये प्रोपेनॉल है ना तो प्रोपीन गिव्स प्रोपीन. ये तमाम एग्जाम्पल्स बेटा शेयर की है. मैं आपको फिर भी बता देता हूँ. ये है CH3OH. मैंने कहा था OH हटाइए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाइए. आई होप अब आपको याद आ गया हो. Shifting of bond, removal of hydrogen takes place from adjacent carbon atom. It is adjacent, it is also adjacent, it is also adjacent. और ये तीनों adjacent carbon atom same है. तो जब same adjacent carbon atom होती है तो किसी से भी dehydration करवा लीजिए same alkene बनेगी. You will get only one alkene and this is going to be CH3C CH3 double bond CH2 which is 2-methyl propene. सही है बेटे. The right answer is guys C. Question 40. A reaction mechanism is shown. ठीक है. Reaction mechanism आपको नजर आ रहा है. वो कह रहे हैं कि which statement about this reaction is correct. तो पहला वो कह रहे हैं hydrolytic bond fission occurs. बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि ये जो एरो की प्लेसमेंट्स हैं ये एरो फुल एरो है. फुल एरो शोज कि हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है. सही है. उसके बाद इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज अगर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. फिर वो कह रहे हैं OH behaves as an electrophile. No, it is an electrophile. No, it is a nucleophile. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास B. थैंक यू गाइस.